5 منٹ کو تعارف نہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان پیس فورم کی جانب سے نئے تصور پاکستان کے سیمینار کے آج کے نشست کے صدر جناب لشکری رسانی صاحب، نواب اسلم رسانی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتہ اسماعیل صاحب، نواز کوکر صاحب، خواجہ محمد خان وطی صاحب اور تاسناسو د ټولو خلکو په اجازه سب سے پہلے لشکری صاحب اور اس کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس بہترین سیمینار کا انعقاد ممکن بنایا اور ہمیں اس میں شرکت کرنے اور اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. معزز سامعین، محترم مہمانان گرامی، صبح سے جو باتیں ہوئی، جو گلے شکوے ہوئے، جو نکات اٹھائے گئے، وہ ماضی کا حصہ ہے اور جاری ہے. میں لشکری رسانی صاحب سے ایک تجویز دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک ایسے سیمینار کا صوبائی سطح پر بھی انعقاد ضروری ہے جس میں ہمارے صوبے کے سارے سیاسی پارٹی شامل ہو. بالخصوص ہمیں جو مشکلات اور اذیتناک صورتحال درپیش ہے، اس میں وفاق کی جانب سے جو ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے اس پہ میں آخر میں 2-3 باتیں کروں گا. سب سے پہلے میں یہ تجویز دوں گا کہ ہم اس اذیتناک صورتحال تک پہنچے ہیں کہ ہم پشتون اور بلوچ کو اپنی بقا و پناہ کے سوال درپیش ہے. یہاں کی پارٹیاں پشتونخوا ملیون پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب کی اور اختر صاحب مینگل صاحب کی بی این پی، میرے خیال میں اس وقت تک جب تک یہ پارٹیاں سنجیدہ اقدامات نہیں لیتے، یہ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل مشترکہ محاذ نہیں بناتے، شاید خاقان عباسی صاحب اور ان کے دوستوں کی طرف سے معذرت ہو، وفاق کا علاج ناممکن ہے. آپ نے خود دیکھا 2018 سے پہلے نواز شریف صاحب کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اقامے کے نام پر اس کو سزا دی گئی. 2018 میں سلیکٹڈ کو مسلط کیا گیا اور اب سب مان رہے ہیں کہ ہم غلط آدمی اور غلط لوگوں کو لائے. اور اس کے ساتھ پی ڈی ایم کی جدوجہد بھی آپ نے دیکھی. ایک حد تک 18ویں ترمیم کے بعد ایک اچھا اعلامیہ بنا تھا 26 نکات کا، لیکن پی ڈی ایم آج اس کی بات تک نہیں کرتی، اپنے مشکلات میں پھنس گئی. اس کی بجائے کہ وہ سلیکٹڈ کو برسر اقتدار رہتے ہوئے انجام تک پہنچا دیتے، خواہ مخواہ ان سے اقتدار لے کر اپنے آپ پر وہ حالات مسلط کیے گئے. لہذا ہمارے اس صوبے جس میں پشتون بلوچ کے ساتھ ساتھ ہزارہ اور سیٹلر بھی رہتے ہیں، ہمارے اپنے پارٹیوں نے یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا ہم پارلیمانی جدوجہد کے ذریعے ایک مقام تک پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے. جب تک یہ پارٹیاں یہ بات طے نہیں کرتی تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ نہیں کر سکتے تو کیا یہ سوال نہیں مطرح ہوگا کہ مزاحمت کار صحیح ہے خدا نخواستہ، اور اس کو دہشت گرد کے نام پر مارا جا رہا ہے، اس کے دہشت گرد کے نام پہ اغوا کیا جا رہا ہے، اسے دہشت گرد کے نام پر اس کی مسخ شدہ لاشیں لائی جا رہی ہے. پی ڈی ایم کی طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی پشتونخوا ملیون پارٹی کے صوبائی صدر مرکزی سیکریٹری عثمان لالا شہید کی شہادت پر ایک قرارداد تک پاس نہیں کر سکتی. پی ڈی ایم کی کور کمیٹی اسٹرنگ کمیٹی کا ممبر تھا.
आयात बलोच को आपने तुर्बत में देखा, उस तस्वीर को आपने देखा जिसके सराहने अब उसकी मां बैठी हुई थी। क्या वो पाकी पार्टियां उसका मदावा कर सकती है? नहीं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हम गलतफहमी में न रहे। वो पाकी पार्टियों के दोस्त बैठे हैं, नाराज न हो। हमने सियासत के उस मदरसे में से पारा पढ़ा है जिसमें इंसान से रंग, जबान, नस्ल, मजहब की बुनियाद पे हम नफरत नहीं करते। मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें कुछ नाखुशगवार बातें आएंगी, खाकान साहब नोट न कर ले। पाकी पार्टियों के पास खुद प्रोग्राम नहीं है। उनसे आप पूछिए कि अगर आप इख्तिदार में आते तो क्या आप सारे मुल्क के लिए एक तालीमी निज़ाम दे सकते हैं, एक सेहत का निज़ाम दे सकते हैं, एक ज़राअत का निज़ाम दे सकते हैं? जिस तरह हमारे सूबे में रफीउल्लाह साहब ने ठीक कहा, एमपीए फंड की बुनियाद पे 65 वज़रा होते हैं। 65 एमपीए यानी 65 वज़रा का काम चलता है हमारे सूबे में खाकान साहब ज़िया-उल-हक के वक्त से। लिहाजा सूबे के पार्टियों को अपनी हालत पर सोचना होगा। उसने ये फैसला करना होगा कि क्या हम मुत्तहिद होकर अपने मकासद की तकमील तक जदोजहद करने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन हम पार्लिमानी सियासत की खुशफहमी में 3-4 सूबाई सीटों, 1-2 कौमी सीटों की खुशफहमी में सब कुछ भूल चुके हैं। और नतीजतन क्या होगा? नतीजतन ये होगा, लश्करी रिसानी साहब, ऐसा वक्त आएगा फिर ये सेमिनार में भी लोग नहीं आएंगे और मज़ाहिमत की सियासत आगे जा रही है। रफीउल्लाह साहब ने कहा कि बलोच इलाके में आखिरी कड़ी मौजूद है। नहीं, वो कड़ी खत्म हो चुकी है। अगर वो मौजूद है तो मुझे वो खुजार में जलसा करके दिखा दे। मजीद बिजंजो जो वज़ीर आला है, कुदूस बिजंजो, वो एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से अवारांग का दौरा करके दिखाएं, वो डेरा बुक्सी का दौरा करके दिखाएं, वो खुजार का दौरा करके दिखाएं। वो अपने इलाकों में सियासी प्रोग्राम खाकान साहब तक नहीं कर सकते। कभी कभी जब जाते हैं तो फौजी कानवाई में जाते हैं, फौजी कानवाई के अंदर बैठ के बात करते हैं, फोटोज बनाते हैं, फौजी कानवाई की शक्ल में वापस कोयटा आते हैं। वो रिट जो हुकूमती रिट थी बलोच इलाकों में अक्सरियत खत्म हो चुकी है, सिर्फ शहरों तक महदूद है। हकीकत यह है, अगर हम बरसरे जमीन इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते तो खुदा न खास्ता आने वाला कल इससे और भी ज्यादा बुरा होगा। पश्तून इलाकों में सूरत हाल क्या है? पश्तून इलाकों में नौजवान तबका इस इंतजार में है कि हम किस तरह पार्लिमानी कुव्वतों को नाकाम बनाए, मज़ामियाती सियासत शुरू कर दे। अब भी पीटीएम के मज़ाहिरे सबसे बड़े होते हैं। नौजवानों की अक्सरियत पीटीएम के साथ है और पीटीएम और मुल्की सतह पर पार्लिमानी कुव्वतों की ताकत यह है कि वो एक आली वजीर को रहा तक नहीं कर सकते। जब उसको इतिमाद के वोट की जरूरत थी शहबाज शरीफ को, तो अली वजीर को जेल से निकाल कर लाया गया, उस सेशन में बिठाया गया। अब जो ऑर्डर नहीं हो सकता उसको नहीं ला सकते। फिर कहते हैं कि मुल्की सियासत में फौज और एजेंसियों की मुदाखिलत खत्म हो चुकी है। अगर फौज और एजेंसियों की मुदाखिलत खत्म हो चुकी है तो अली वजीर को क्यों रहा नहीं किया जाता? किस लिए उसको बंद रखा गया है? सारे अदालतों ने उसको जमानतें दे दी है, अक्सर केस खारिज हो चुके हैं। सुवात से लेकर वजीरिस्तान तक, क्वेटा तक धरने जारी है। अभी सुवात, बुनेर, मालाकंड, बाजौर, वजीरिस्तान में
धरने हुए बड़े बड़े तालिबानाइजेशन के खिलाफ, क्या कोई वफाकी पार्टी ये दावा कर सकती है कि सुवात और बाजवड़ के इस तरह मुजाहरे आप कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी, ख्वाजा मोहम्मद खान साहब बैठे हैं, उसको मालूम है वजीरिस्तान में जो धरना हुआ, सुवात में जो जलसे हुए जिसमें लाखों लोग थे, किसी वफाकी पार्टी के साथ ये ताकत नहीं। ये ताकत मुजाहिमत करने वालों के साथ है। और पश्तून वतन की जो पार्लिमानी सियासत की कड़ियां हैं वो जंगालूद हो चुकी है, वो टूटने वाली है। हम जैसे कारकुन जब पार्लिमानी सियासत की बात करते हैं, हमारे तालीम याफ्ता नौजवान हमें पेगोर देते हैं, कहते हैं आप बुज़दिल है, और वो ठीक कहते हैं। और वो ठीक इसलिए कहते हैं कि उस्मान शहीद ने सेनेट में कहा था कि मुझे ISI और MI धमकियां दे रहा है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे गुम खाते में न डाला जाए। उसको दिन के वक्त अपने घर में मारा गया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था कि आपने उस्मान शहीद ताहिर दावड़ DSP इस्लामाबाद से जो अगवा हुए, आपने उसको शहीद किया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने हमारे सहाफ़ी अरशद शरीफ पंजाबी को शहीद किया, हम अभी चुप नहीं रहेंगे। ये फवाद चौधरी फवाद का ट्वीट है। लिहाजा मसला क्या है? सूबे के पार्टियों से मैं कहता हूं, दोस्तों से मैं कहता हूं, हम और आपने अपने मसाइल का हल निकालना है। हम और आपने एक होना है। वफाकी पार्टियों की ताकत है लेकिन वो यरगमाल हो चुकी है। और सवाल, आखिरी बात ये करूंगा, सवाल ये है मुल्क में, कौमी सवाल और जमहूरी सवाल, क्या कौमों की बराबरी तस्लीम होगी? हकीकी जमहूरियत होगी? आईन कानून की हुक्मरानी होगी? पार्लियामेंट की खुद मुख्तियारी होगी? खारिजा और दाखिला पॉलिसियां पार्लियामेंट के जरिए तश्कील होंगी? इसकी आईनी जमानत होगी? हमारे वसाइल पर हमारा इख्तियार होगा? नया इमरानी माहिदा होगा? फिर हम वफाक के पार्टियों के साथ बैठेंगे। इसके मां सिवा अगर हम वफाक के पार्टियों के साथ बैठेंगे फिर भी हमारा टाइम जाया होगा, हम मजीद बर्बाद होंगे। हमारे ग्वादर के बाबा ने अच्छा सवाल उठाया, चमन बॉर्डर आपने बंद कर दी, तप्तान आपने बंद कर दी, तुरबत के बॉर्डर आपने बंद कर दिए, पंजगुर के बॉर्डर आपने बंद कर दिए, आपने हमसे जो मेहनत मजदूरी का जरिया था वो भी खत्म कर दिया। और अब हमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान उस वक्त जिंदाबाद होगा जब पश्तून जिंदाबाद होगा, जब बलोच जिंदाबाद होगा, जब सिंधी जिंदाबाद होगा, जब सराइकी जिंदाबाद होगा। ये नहीं हो सकता। 21वीं सदी है, अब भी हमारी आंखों में धूल डाला जा रहा है। 21वीं सदी है, बादशाही तख्त लाहौर की है, बादशाही तख्त लाहौर की है, और इस्लामाबाद उसके चलाने का दफ्तर है। इस्लामाबाद उसके चलाने का दफ्तर है। हत्ता मजलूम अकवाम, माकूम अकवाम और पंजाब की मजलूम आवाम, खाकान साहब वहां के रहने वाले हैं, आप उर्दू अखबारात उठा के देख ले, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पंजाब के देहाती इलाकों में खुदा न खासा रेप के वाकयात तो नऊज़ुबिल्लाह नहीं होते, जहां गरीबों को दरपदर नहीं किया जाता। हमारा तो कोई पूछता ही नहीं। अदलिया आपने देख लिया, आपके साथ क्या हुआ? आप खुद आप पर केस था। एक टीवी पे आप बोलते थे कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है सीनेट के इतिमाद के वोट के हवाले से, लेकिन आखिरकार आप भी चुप हो गए, तक गए। नवाज साहब को सच की पादाश में पार्टी छोड़ना पड़ी। सच की पादाश में। ये वो मुल्क है जिसमें सच बोलने पर पाबंदी है, जिसमें डाका डालने, जिसमें चोरी करने, जिसमें करप्शन करने, सब कुछ की आजादी है। हमारे मिनिस्टर साहब बैठे थे, अच्छी बात है कि वो चले गए। मैं इस साल को चैलेंज करता हूं, अभी अखबारात में टेंडर आ रहे हैं, किस आदमी को किस शेयर का ठेका चाहिए 10% में, चाहे वो ठेकेदार हो न हो,
किस शख्स को किस जिले का रोड का ठेका 12% में चाहिए, ये नीलाम आम है। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ राब्ता रखे, मैं लोग तुम्हें बताता हूं, वो तुम्हें देगा। 1 करोड़ का काम 50 लाख में होता है। खाकान अब्बासी साहब, ये वो लोग हैं जिसने आपकी पार्टी को बर्बाद किया, आदम एतमाद लाया और इन लोगों को उठा के बाप की शक्ल में इकट्ठा किया। और बाजवा साहब कोयटा आए थे उस वक्त, उसने तकरीर की थी सेरिना में, हम इसके साथ बैठे। वो क्या कह रहे थे, अब बासलाहियत लोग आ गए हैं। बाप आदम एतमाद के बाद सेरिना में प्रोग्राम था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब कह रहे थे, कुदूस बिजंजो की जो हुकूमत आई उसने कहा अब सूबे में बासलाहियत लोग आ गए, ईमानदार लोग आ गए, अब सूबा तरक्की करेगा। जब आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां तक मुदाखलतकार है, ब्रिगेडियर खालिद फरीद नाम था या क्या था, उसने प्रिय पार्टी बनाई बाद में, ये आदम एतमाद उसी ने किया था। लिहाजा सवाल वाज़ेह है, बलूचिस्तान के पश्तूनों, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध बलोचों ने अपने घर बैठकर अपने लाएमल तय करना होगा। यही आखिरी इंतखाबात है। इस इंतखाबात के बाद, आने वाले इंतखाबात के बाद आपकी ये पोजीशन नहीं रहेगी। आप भी कैंपेन करने पशीन नहीं जा सकेंगे। आज तुरबत नहीं जा सकते, कल रोब नहीं जा सकते, आपका रास्ता बंद हो जाएगा। लोग पश्तून बेल्ट में, मैंने कहा इस जंजीर की कड़ियां जंगालूद हो चुकी है, वो टूटने वाली है। और पंजाब बड़ा भाई का किरदार अदा करते हुए ये हम मानते हैं कि पीडीएम के दौर में मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ने वाकई अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए पहली दफा पंजाब से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हकीकी आवाज बुलंद हुई और उसे पीछे धकेला गया। हमें मानते हैं बतौर सियासी कारकुन, लेकिन मजीद आगे जाने की जरूरत है। और वो वाहिद फार्मूला ये है कि ये मुल्क आवाम के लिए बना है। ये सिक्योरिटी स्टेट नहीं चल सकता, ये फलाई रियासत बन के चल सकता है। फौज और एजेंसियों की सियासत में मुदाखिलत हर सूरत खत्म करनी होगी। आईन कानून की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, नया उमरानी माहिदा 1940 की करारदाद की रोशनी में, इस तरह नहीं जिस तरह करारदाद मकासद के जरिए आइन का उलिया बिगाड़ा गया। नहीं, 1940 की करारदाद के मुताबिक बैठ के बात हो सकती है। लेकिन खाकान साहब से मैं कहना चाहता हूं, आज जो सियासी कारकुन ये तजावीज दे रहे हैं, जो सियासी कारकुन ये तजावीज दे रहे हैं, खुदा न खास्ता हो सकता है कल ये हालत न हो। लेकिन बलूच बेल्ट में अब भी ऐसी हालत है, अगर कोई कहना चाहता है तो उठ के खड़ा कर दे। ऐसे इलाकों की अक्सरियत है कि इस मौजू पे आप इस तरह सेमिनार नहीं कर सकते, नहीं बैठ सकते, सियासी कारकुन का इज्तिमा नहीं होता। मज़ाहमतकार उसे कहते हैं कि आप फेल हो चुके हैं, पार्लियामान में आपकी आवाज नहीं सुनी जाती, आपको इख्तियारात नहीं दिए जाते, कौमी सवाल का हल नहीं निकाला जा रहा। लिहाजा हमें छोड़ दे, हम लड़ेंगे। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी की तारीख रही है। हम ये कहते हैं कि खान शहीद अब्दुल समद खान अचकजई, बादशाह खान गौस बख्श बिजंजो, मीर यूसुफ अजीज मैक्सी जैसे अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों की सूरत में हम यहां तक पहुंचे हैं। अभी ये बड़े भाई का काम है कि वो हमें अपने साथ रखना चाहते हैं या हमें भगाना चाहते हैं। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया ईसा रोशन।